Talking everyone. Vibul, suní आ रही? Start sending your attendance. Let's wait for 2 more minutes so that everyone can join. And then we will be starting with trade to territory. Everyone is here. We can start now. Starting with trade to territory, history, chapter 2. And remember a bit of a background which we did. Remember some incidents which we discussed in class 7. Political formation during 18th century. Particularly after the death of Aurangzeb, मुगल रूल के साथ, मुगल डायनेस्टी के साथ क्या हुआ, मुगल एम्पायर के साथ क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस थोड़ा सा याद करना हम लोगों। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, go to the background. If you remember, we discussed that Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. सबसे powerful Mughal ruler थे last वो Aurangzeb. He was not the last ruler. Remember, there's a difference between the last Mughal ruler and last powerful Mughal ruler. We have already seen after Aurangzeb, most of the rulers were weak. They could not hold together the empire. Empire को साथ जोड़कर नहीं रख पाए थे. If you remember, independence declare करती थी अवध में, हैदराबाद में, बंगाल ने, पंजाब की फॉर्मेशन हो गई थी, मराठा एम्पायर की फॉर्मेशन हो गई थी, साइमल्टेनियसली राजपूत वर राइजिंग टू पावर एज वेल. तो आई राजा जय सिंह याद आया, तो थोड़ा याद आया होगा, राइट? These all were now working independently. Okay? Due to which Delhi जो एक important center था पावर का, Delhi was the center of power, वो weak होना शुरू हो गया. It started becoming weak, right? And Mughal Empire जो था आपका, मुगल एम्पायर वो दिल्ली और उसके आसपास वाले एरियाज, दिल्ली एनसीआर वाले एरियाज तक लिमिट हो गया. सो मुगल एम्पायर व्हिच वाज once during the times of Aurangzeb was capturing whole of India. By whole of India meaning Pakistan, present day Pakistan, India and Bangladesh was now confined to Delhi. Okay, what happened? अब क्या हुआ? All whatever I am writing on the screen, you can take the screenshots from recordings. Yeah, important lines सिर्फ underline करते जाना. What happened after the death of Aurangzeb? After his death, this is important. Okay, I'm also making you this highlighting. After his death in 1707, many Mughal governors or subadars and big zamindars, they started asserting their authority and they started establishing regional kingdoms. And as powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could not longer function as an effective center. 1707, after 1707, death of Aurangzeb, हमने यही देखा था ना, अवध, हैदराबाद, बंगाल, ये सब किसके अंडर थे? ये सब मुगल गवर्नर्स के अंडर थे, है ना, सूबेदार्स के अंडर थे. उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, उन्होंने अपना रीजनल किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया था. और जैसे जैसे वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में रीजनल किंगडम्स, छोटे छोटे रीजन बेस्ड किंगडम्स पावरफुल हो रहे थे, दिल्ली वीक होता जा रहा था. ठीक है, ये हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. देन कम्स अराउंड द पीरियड ऑफ 1750s में we see new power which is emerging. 7th में जब मैंने आपको मिडल हिस्ट्री करवाई थी, मिडीवियल इंडिया करवाया था, we took the timeline roughly as 700 to 1750 CE, है ना? Because during this period
we see a emergence of new political power. Politically मुगल्स डिक्लाइन कर रहे हैं और एक दूसरी पावर राइज कर रही है. That's why. And that this other power was none other than British. Class 7th में we discussed Jahangir. Jahangir के court में, if you remember, there were two officers which came to get a trading right. याद आया? कैप्टन हॉकिंस थे एंड थॉमस रे थे. याद आया? नाम सुना सुना लग रहा होगा, एटलीस्ट नाम तो सुना सुना लग रहा होगा, है ना? They took permission from Jahangir to establish a factory in Surat. याद आया? यहाँ से सारी स्टोरी शुरू होती है. A company which comes to trade with India. Here, where are the lines? Line देखोगे. The British originally came as a small trading company and were reluctant. Reluctant मतलब वो टेरिटरीज कॉन्कर करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो रिलक्टेंट थे, मतलब हिचकिचा रहे थे. They were not sure to conquer territories or not. जिनको टेरिटरीज कॉन्कर ही नहीं करनी थी, वो इतने बड़े एम्पायर के मास्टर्स कैसे बन गए? They ruled us for almost 200 years. Almost, actually 190 years. ठीक है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 200 years तक बोलते हैं. 2 centuries तक उन्होंने हम पे रूल किया था. हाउ इज इट पॉसिबल जब वो इतने रिलक्टेंट थे हम पे, हमें रूल करने के लिए, टेरिटरीज एक्वायर करने के लिए? अब ऑब्वियसली विद द चैप्टर डिस्कशन, जैसे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड, यू विल गेट टू नो दैट हाउ व्हाट मेड देम टू कॉन्कर अस. ओके, व्हाट मेड देम टू स्टार्ट कॉन्करिंग अस एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. स्टोरी शुरू होती है, वो कहाँ से होती है? स्टोरी डेट्स बैक टू 1600. In 1600, Queen Elizabeth I. Queen Elizabeth I. Sorry. Queen Elizabeth I. She is the ruler of Britain. Is the ruler, and she gives a charter. She gives a charter. Charter. आप बोलोगे हम charter क्या होता है? Charter बेटा is a written permission. It is a written permission for trading. जब भी किसी कंट्री का रूलर किसी कंपनी को चार्टर देता है, इट मीन्स they are he or she or they are giving written permission to trade. ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हो, आपको परमिशन, आपको रिटर्न परमिशन दे. क्वीन एलिजाबेथ इशूड अ चार्टर, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को. they issued a charter to East India Company to exclusively trade. किसके साथ ट्रेड करना है? with eastern countries. Eastern countries, later on it was replaced by India. ठीक है, तो बेसिकली इंडिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट जब मैं बोलती हूँ, इट मीन्स प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश. ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब समझ में आया? ये चार्टर प्रोवाइड किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो एक्सक्लूसिवली ट्रेड करेगी इंडियन सबकॉन्टिनेंट. एक्सक्लूसिवली, कोई और ट्रेड नहीं कर सकता इंडियन सबकॉन्टिनेंट में. इंडिया के साथ कोई और कंपनी ट्रेड नहीं करेगी. इंग्लैंड की सिर्फ एक कंपनी, जस्ट वन कंपनी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी. इसको लेटर नेम कर दिया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो मैं बताऊंगी कब किया गया था, बट इसको लेटर हम बोलते थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ये भी पॉइंट याद करने वाला नहीं है, अभी इतना समझो पहले. इतना क्लियर हुआ? चार्टर ग्रांट हो गया. ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ I ने चार्टर दे दिया, परमिशन दे दिया. इतना क्लियर है?
अब इसका मतलब क्या था, इस चार्टर का मतलब ये था दैट नो अदर कंपनी वुड बी अलाउड टू ट्रेड विद इंडिया। इंडिया के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी और कोई ट्रेड कंपनी नहीं करेगी। हेंस इट एलिमिनेटेड कंपटीशन, कंपटीशन को खत्म कर दिया था। ये ऐसी बात थी कि अकेले रेस में भागोगे तो बच्चा फर्स्ट ही आओगे ना, ठीक है। तो ये अकेले रेस में भागने वाले थे, ट्रेड करने के लिए सिर्फ यही ट्रेड करेंगे और कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड फर्दर। फर्दर कंपनी की क्या ड्यूटीज आ गई थी स्टार्टर के साथ? कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, यानी वो अक्रॉस द ओशन जा सकती है, ठीक है। दे कैन गो अक्रॉस द ओशंस, दे कैन सर्च फॉर न्यू लैंड्स, न्यू एरियाज। न्यू एरिया सर्च करो। क्यों सर्च करने हैं न्यू एरियाज? क्योंकि बाय गुड्स एट चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस। अब देखो, मुझे पता है ये आधी कहानी समझ नहीं आई है कि चीप प्राइसेस पे बाय गुड्स क्यों खरीदने हैं और यूरोप जाके क्यों इतने हायर प्राइसेस पे बेचने हैं। जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं बच्चे, उस टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था यूरोप में, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज आ रही थी बन के, इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई थी, ठीक है। अब बोलोगे मैम उससे क्या होता है, तो अच्छी बात है। अच्छा अच्छी बात तो है, बट इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अगर आपको ब्रेड बनानी है, वुड यू नीड फ्लावर, शुगर, सॉल्ट, ऑल ऑफ दीज, ये चाहिए ना ब्रेड बनाने के लिए, है ना, रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए होता है काम करने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। पिज्जा कैसे बनेगा अगर आटा ही नहीं होगा, मैदा ही नहीं होगा गूंदने के लिए, है ना। अगर पैकेज फूड भी है, पैकेज फूड हम लाते हैं, हम इंस्टेंट पास्ताज लाते हैं, हम इंस्टेंट नूडल्स लाते हैं, उनके लिए भी तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना। तो यहाँ इंडस्ट्रीज को चाहिए था रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्यों चाहिए था? सबको पता है यूरोपियन कंट्रीज बहुत ठंडी कंट्रीज होती है, वहां सब कुछ अवेलेबल नहीं होता। क्या वहां तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, यहाँ ठंड बहुत होती है, सबको पता है ना। पहाड़ी पहाड़, इट्स ऑल अबाउट पहाड़, राइट। So that's why they were lacking in many of the raw material. तो उनको चाहिए था कि ऐसी मार्केट ढूंढो where they can buy goods at cheap prices, वो cheap prices पर रॉ मटेरियल खरीदे, यूरोप लेकर आए और यूरोपियन कंट्रीज को हाई प्राइसेस पे बेचे, ठीक है। अच्छा कंपटीशन का फियर तो वैसे ही नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अदर इंग्लिश कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी से तो कोई कंपटीशन है ही नहीं ना उनका। इंग्लैंड की कोई और कंपनी कर रही है ट्रेड? नहीं कर रही ना। इंग्लैंड की कोई और कंपनी ट्रेड नहीं कर रही है, तो कंपटीशन का तो डर ही नहीं है। तो वो जिस प्राइस पे चाहे बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। अब मार्केट में एक शॉप है, ठीक है, मार्केट में एक ही शॉप है, वो चाहे 100 रुपए किलो आटा बेचे या 1000 रुपए किलो बेचे, आपको खरीदना पड़ेगा ना। मार्केट में शॉप है, मार्केट में कोई शॉप ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं है, तो वो जो प्राइस देंगे आपको खरीदना पड़ेगा। तो दिस वाज आल्सो द सिचुएशन फॉर द कंपनी। कंपनी जिस प्राइस पे यूरोप में सामान बेचेगी उनको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज को चाहिए रॉ मटेरियल, तो वो जिस प्राइस पे बेचेंगे वो उनको खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज का। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज का बड़ा ही फनी कंसेप्ट है, ये हमसे लिया हुआ है। इन्होंने ना ये हमसे लिया हुआ है और इसको ना थोड़ा ग्लोरीफाई, मतलब अच्छी इंग्लिश में बोला हुआ है, तुम सुन के बड़े वो हो जाओगे। देखो मर्सेंटाइल ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज होती है, ऐसी कंपनीज होती है जिनका सोर्स ऑफ इनकम प्रॉफिट होता है, ठीक है। कैसे? चीप प्राइसेस पे गुड खरीदो, बाय प्राइसेस, बाय चीप गुड्स, बाय गुड्स एट चीप प्राइसेस, बाय गुड्स एट चीप प्राइसेस एंड सेल एट हायर अमाउंट, ठीक है।
इंडिया में ना इसको मिडिलमैन बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, है ना। तो वहां पे ट्रेड, अच्छा यहाँ पे जो इलीगली करते हैं ना, इलीगली मतलब जो अनऑफिशियली करते हैं ना मिडलमैन, सस्ते में खरीदते महंगे में बेचना, है ना, वहां पे ये रेगुलराइज होता है। वहां पे एक अच्छा वर्ड है मर्सेंटाइल, और ये कंपनीज करती है बड़ी बड़ी, ये नहीं छोटे मोटे लोग कर रहे हैं, नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज मर्सेंटाइल होती हैं, सस्ते में सामान लाए महंगे में बेचा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली मर्सेंटाइल कंपनी थी, ठीक है। दे आर गेटिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया एट चीप प्राइसेस, और वो सेल कहाँ कर रही है, यूरोप में, हायर प्राइसेस पे। 10 रुपए की चीज लो, 90 रुपए में बेचो या 100 रुपए में बेचो, ठीक है। सुना सुना बहुत, बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है ना ये, है ना। तो मैम यहाँ तो सदियों से हो रहा है ये, है ना। हम तो अपने फ्रेंड के लिए पेन भी लाते तो कहते 5 रुपए एक्स्ट्रा दे, होता ही है। चलो, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। अच्छा, तो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज कैसे अपना प्रॉफिट ले रही थी, वो इसी अच्छा, उनका प्रॉफिट इंश्योर करने का तरीका, मतलब उनका प्रॉफिट चलता रहे, ये ना हो कि कल को कोई कंपटीशन आ जाए तो प्रॉफिट कम हो जाए। तो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज क्या करती थी, दे यूज टू एलिमिनेट राइवल्स, राइवल्स या कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है। पहले भी मर्सेंटाइल कंपनीज क्या होती थी, वो ये करती थी, जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही प्रॉफिट है, वो क्या करती थी, वो अपने राइवल्स को एलिमिनेट कर देती थी या कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है। जैसे मान लो मार्केट में दो शॉप खुल गई, शॉप वन, शॉप थ्री। शॉप वन बेच रही है 100 रुपए किलो चावल, राइस सेम, अच्छा क्वालिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। तो अब लोग तो 80 वाले से लेंगे ना, 100 वाले से थोड़ी लेंगे, है ना। तो 100 वाला क्या करेगा, या तो उसको ₹80 या उससे लेस में बेचना पड़ेगा, इसका प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा उसका। प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। तो पता है क्या करेगा शॉप वन वाला, इसी को, इसकी दुकान ही बंद करवा देगा, एलिमिनेट कर देगा, अपने राइवल को एलिमिनेट कर देना, अपने कॉम्पिटिटर को रेवलेट। तो मर्सेंटाइल कंपनीज यही करती थी यूरोप में, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे कौन सा दूसरा आ जाएगा, हटाओ इसको, हमारा प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है, जोशी आई कम टू यू, ठीक है। मर्सेंटाइल कंपनीज ये करती थी। फिर आगे क्या हुआ, कहानी और इंटरेस्टिंग होगी अभी, ठीक है। अच्छा, जो रॉयल चार्टर था, रॉयल चार्टर था वो इंग्लैंड के लिए था, इंग्लैंड के लिए था ना, इंडिया का। अच्छा, सबको पता है इंग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, इंग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, और इंग्लैंड उस कॉन्टिनेंट का छोटा सा हिस्सा है, जैसे हम एशिया का छोटा सा हिस्सा है। सबको पता है ना, वी आर अ पार्ट ऑफ एशिया। नहीं पता तो अब पता लग गया ना। इंडिया के लॉज बने हुए इंडिया में ही एप्लीकेबल होंगे ना, पूरे एशिया को तो एप्लीकेबल नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। इंडिया के बने लॉज इंडिया में एप्लीकेबल होंगे या पूरे एशिया में एप्लीकेबल होंगे, ओनली इंडिया, राइट। तो सेम था, जो चार्टर मिला था, ठीक है, जो चार्टर मिला था, इट वाज ओनली फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड कंपनीज, इंग्लैंड थी, है ना, इंग्लैंड के लिए था, इंग्लैंड की एक ही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। दिस चार्टर डिड नॉट प्रिवेंटेड अदर यूरोपियन कंट्रीज, अदर यूरोपियन कंट्रीज को नहीं रोक पाई वो, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया में इंग्लैंड के साथ साथ, सॉरी ब्रिटिशर्स के साथ साथ, या इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स कह लो, ब्रिटिशर्स के साथ साथ पोर्चुगीज, डच एंड फ्रेंच भी आ गए थे प्रोडक्ट्स चीप प्राइसेस पे खरीदने के लिए। डच आर द पीपल हु बिलोंग टू नीदरलैंड्स, डेनमार्क मत सोच लेना, फ्रेंच फ्रांस, पोर्चुगीज पुर्तगाल, ठीक है। अब इंडियंस थे, ओ माय गॉड, सो मेनी पीपल फाइटिंग फॉर अस, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए कितने सारे लोग लड़ रहे हैं आपस में। हमारे को था कि अरे वाह, एक्शन देखने को मिलेगा,
हम बहुत खुश हो गए थे, इतना सारा एक्शन, और बहुत सारा एक्शन हुआ था, बहुत सारा एक्शन हुआ था। नाउ व्हाट हैपेंड, ये चार्टर अदर यूरोपियन कंट्रीज को नहीं रोक पाया था। पोर्चुगीज, पोर्चुगीज ऑलरेडी हमसे कह रही हूँ, सॉरी, पोर्चुगीज ब्रिटिशर से पहले ही गोवा में आके बैठ गए थे। पोर्चुगीज ऑलरेडी गोवा में आ गए थे थैंक्स टू वास्को ड गामा। वास्को ड गामा ने, पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे वो, उन्होंने रास्ता डिस्कवर किया था इंडिया आने का, ठीक है, और उन्होंने वही बेस लगा लिया, और ऑलमोस्ट वेस्टर्न कोस्ट पे पोर्चुगीज की प्रेजेंस थी यहाँ तक, पूरे वेस्टर्न कोस्ट पे प्रेजेंस थी पोर्चुगीज की। उनका बेस था गोवा में, हेडक्वार्टर्स इन गोवा। अभी इंग्लिश ब्रिटिशर्स, ठीक है, यहाँ पहुंचे थे सेंट हेलेना पोर्ट पे, तब तक पोर्चुगीज यहाँ सेटलमेंट अपना घर बार बढ़िया जमा चुके हैं, अच्छे से सेटल्ड है, मतलब बढ़िया से। जैसे तुम अभी सेटल्ड हो ना पढ़ने के लिए, वो भी एकदम ट्रेड करने के लिए सेटल्ड थे वेस्टर्न कोस्ट पे। धीरे धीरे फिर डच आए, फिर फ्रेंच आ गए, ठीक है। अब बात यह है, लड़ाई हो क्यों रही है, मतलब क्या है भाई इंडिया में ऐसा, इतना क्या है कि सबको इंडिया से सामान लेना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि कॉटन और सिल्क जो प्रोड्यूस होता था इंडिया में, वो सबसे फाइन क्वालिटी का था पूरे वर्ल्ड में। फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क वॉज प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है, रॉ रॉ कॉटन और रॉ सिल्क। अब आप पूछोगे मैम रॉ कॉटन और रॉ सिल्क क्यों चाहिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, आज आप सारे रेडीमेड कपड़े पहनते हैं ना, हम सारे रेडीमेड बने बनाए कपड़े पहनते हैं ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोप में हो रहा था, तो वहां पर भी रेडीमेड गारमेंट्स की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फॉर डेली डेली वियर के लिए कॉटन यूज होता था, जैसे शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, इन सब के लिए कॉटन यूज होता था, और स्पेशल ओकेजन्स के लिए सिल्क का बनता था, लाइक स्पेशल सूट्स, गाउन्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सिल्क वाज यूज्ड, ठीक है। आप लोगों ने कई बार अगर ब्रिटिश मूवीज या जिनमें अपने ब्रिटिश एरा की कोई मूवी देखी है, या जिसमें ब्रिटिश पीरियड डिस्कस्ड है, तो आप देखोगे जो वो पहनते हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह, दे हैड अ वेरी गुड, उन्होंने एक रेड जैकेट पहनी होती है ऊपर, या उनका जो, आपको दिखेगा वो शाइनी सा कपड़ा पहना होता है, ठीक है, शाइनी से कपड़े होते हैं। दे वर बेसिकली फॉर सिल्क, इट वाज फॉर स्पेशल ओकेजन्स, इट वाज मेड फॉर सिल्क, एंड डेली यूज की शर्ट्स वगैरह ये सब बनती थी कॉटन से, ठीक है। यूरोप में बनते थे आपके रेडीमेड गारमेंट्स, हमको रेडीमेड गारमेंट्स पहनने की आदत वहीं से आई है। अब कब कब आए रेडीमेड गारमेंट्स यहाँ पे, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। एक तो पहली बात है, कॉटन चाहिए बहुत सारा, सिल्क चाहिए, ठीक है। यूरोप में, यूरोप में क्या चाहिए इस टाइम पे, कॉटन और सिल्क। इसके बाद स्पाइसेस, स्पाइसेस में भी स्पेसिफिकली पेपर, ब्लैक एंड व्हाइट बोथ। मम्मी से पूछ लेना काली मिर्च और सफेद मिर्च, काली मिर्च सबको पता होगी, है ना, पेपर, कार्डमम, इलायची, कार्डमन, सिनेमन, दालचीनी, एंड क्लोव्स, लौंग। स्पाइसेस के लिए तो तुम लोग खुद अगर साउथ इंडिया जाओ तो मम्मी को देखो कितनी एक्साइटमेंट होती है, बहुत सारे स्पाइसेस लाएंगे साउथ इंडिया जाएंगे तो, है ना। कौन कौन साउथ इंडिया गया और किस किस की मम्मी को बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हम बहुत सारे स्पाइसेस लेकर आएंगे वहां से। राशि की हंसी बता रही है, ठीक है। अगर नहीं है कभी साउथ इंडिया जाने की बात करना और देखना सबकी मम्मी कितनी एक्साइटेड हो जाएगी, ऋषिका गई हुई है। ऋषिका ऐसे ही हुआ था ना, मम्मी को बहुत एक्साइटेड, स्पाइसेस लेके आएंगे बहुत सारे, है ना। तो जब इंडियंस को इतना क्रेज है हमारे होम ग्रोन स्पाइसेस का, तो सोचो बाहर की कंट्रीज को कितना था। एंड बेसिकली ये उनके कुजीन्स में यूज होता है, ठीक है। अगर आप, या पेपर, कार्डमम, सिनेमन केक्स वगैरह में यूज होता है, क्लोव्स, क्लोव इज अ प्रिजर्वेटिव एज वेल, एंड मोस्टली डेंटल इश्यूज में काम आता है, डेंटल मेडिसिन में क्लोव जाता ही जाता है, क्लोव ऑयल जाता ही जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दीज ऑल प्रोडक्ट्स वर नीडेड। अगर हम आगे चले, नाउ मूविंग अहेड, ऑल दीज प्रोडक्ट्स हैड अ ग्रेट डिमांड इन यूरोप, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, जस्ट सेकेंड,
नाउ फ्रेंच भी लड़ रहे हैं, फ्रेंच, इंग्लिश, पोर्चुगीज, डच, ऑल आर फाइटिंग। इंडियंस को क्या होगा? इंडियंस को क्या होगा? इंडियंस को ग्रीड नहीं होगा, लालच नहीं होगा? ग्रीड आ जाएगा ना इंडियन प्रोड्यूसर्स के मन में कि अरे इतनी सारी इंटरनेशनल कंपनीज आपस में लड़ रही हैं हमसे सामान लेने के लिए, है ना? तो क्या होगा, प्राइसेस शूट अप कर देंगे वो। प्राइसेस शूट अप करेंगे नहीं करेंगे? मार्केट में एक चीज की इतनी डिमांड है तो मैं सस्ते में क्यों बेचूंगी जब मुझे पता है चार लोग लड़ रहे हैं मेरे प्रोडक्ट के पीछे। वाई वुड आई सेल एट 20 रुपीज, वाई नॉट 200? वो मुझे कोई भी प्राइस देने को रेडी है ना? सो इंडियंस बेसिकली नाउ देवर इन दिस यू कैन से इस एटीट्यूड में आ गए थे कि हम तो हाई प्राइसेस में देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इन सब गुड्स का प्राइस हाई हो गया। लेने आए थे सस्ता सामान, हो गया महंगा। ठीक है, जो चीज वो इनिशियली 20 रुपीज में लेते उनको 100 में लेनी पड़ रही थी। ठीक है, 20 वाली वो बेचना चाहते थे 100 में, 100 वाली 200 में यूरोप जाके बेचेंगे, वो खरीदेगा? और ऑलरेडी चार कंपनियां लेके जा रही हैं यूरोप में सामान। चार कंट्रीज तो ऑलरेडी लेके जा रही हैं, कंपटीशन तो फिर भी है। यूरोप में चार कंट्रीज लेके जा रही है, नहीं लेके जा रही है सामान, है ना? तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा या बढ़ेगा? थम्स अप हाई, थम्स डाउन लो। प्रॉफिट लो होगा या हाई होगा? बहुत बढ़िया। 12 समझाती हूँ, गलत बोल रहे हो, लो होगा। बताती हूँ कैसे। देखो, मान लो यूरोप में, पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इंडिया से जा रहा है सामान। इनिशियल कॉस्ट थी, मान लेते हैं एक पैकेट ऑफ मसाला की ₹10। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC इसको सेल करना चाहती थी ₹100 में यूरोप में। 90 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन था। 90 रुपीज का मार्जिन। प्रॉब्लम ये है, पहली बात तो इंडिया में पता चल गया कि यूरोप से चार कंपनीज आ रही है खरीदने। ठीक है, ये 10 से उन्होंने कर दिया सीधा ₹50। ठीक है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। ठीक है, इन चारों कंपनीज ने ₹50 के हिसाब से ले लिया एक एक पैकेट। मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, एक एक पैकेट का। ठीक है, अब वो गए यूरोप में। किसी ने, मान लेते सबने, किसी ने प्राइस रखा ₹100, किसी ने ₹90, किसी ने ₹95, किसी ने 105। ठीक है, अब ऑप्शन यूरोपियन कंट्रीज के, यूरोपियन इंडस्ट्रीज के पास ऑप्शन है ना कि वो कोई भी ले सकते हैं। सामान तो वहीं से आया है, उनके पास ऑप्शन है या नहीं है? है ना? तो वो 90 वाला ले सकते हैं। इन दोनों का तो, इन तीनों का तो वेस्ट हो गया सब कुछ, है ना? वो यही चीज ₹10 की लेकर ₹100 में बेच के 90 रुपीज का प्रॉफिट कर सकते थे, लेकिन कंपटीशन की वजह से उन्होंने पहली बात तो चीज ली ₹50 में और बेची कितनी, 90 में। प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ? प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया नहीं हो गया? कंपटीशन आ गया ना। कॉन्टिनेंट वाइज तो, कॉन्टिनेंट में तो है ना। बात समझ में आई है कैसे प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे थे कंपनीज के? क्योंकि आपस में उनको लड़ाई हो रही थी। अभी लड़ाई हुई नहीं है, लड़ाई अभी भी नहीं हुई। ठीक है, अभी उन्होंने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया है कि हमारा कंपनी, एक तो प्राइसेस बढ़ गए हैं इन गुड्स के, दूसरा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, किसी एक ट्रेडिंग कंपनी को फ्लरिश करना पड़ेगा, मतलब किसी एक ट्रेडिंग कंपनी ही अच्छे से ट्रेड कर पाएगी, और सिर्फ उसका तरीका ये है कि आप राइवल कॉम्पिटिटर्स को बाहर कर दो। यू
drag out the rival competitors. And finally, this led to fierce battles between trading companies. Trading companies में fierce battles start होती है. Fierce मतलब bloody battles, blood से भरी हुई battles, बहुत strong battles start होती है. Trade करने के लिए strong bloody battles are being done. मतलब bloody battles हो रही है सिर्फ trade करने के लिए. तो आप quality and you can imagine of the demand which Indian goods had in the international market. कल डिस्कस करेंगे बाकी सब कुछ. ठीक है. अटेंडेंस, if anybody is left with attendance, please send it.